गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अबाउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच। हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। नंबर 1 इज नाउन, नंबर 2 इज वर्ब, नंबर 3 इज एडवर्ब, नंबर 4 is adjective, number 5 is pronoun, number 6 is preposition, number 7 is conjunction, and number 8 is interjection. So what is a noun? What is the first part of speech? It is the noun. What is a noun then? A noun is the name of a person, place, or a thing. For example, pencil, cat, work, notebook. Okay, and the second part of speech is verb. What is a verb? वर्ब वो होती है जो किस वर्ब को हम हिंदी में हम क्या बोलते हैं? क्रिया. इट मीन्स द सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है उसके बारे में जो हमें बताती है वो होती है वर्ब. आफ्टर दैट इज एडवर्ब. एडवर्ब इज व्हाट हु डिस्क्राइब्स अ वर्ब. ठीक है, जो किसी क्रिया को डिस्क्राइब करता है कि कोई क्रिया कैसे हो रही है, उसकी विशेषता बताता है. ठीक है, क्रिया की विशेषता बताने वाला यानी क्रिया विशेषण. इट मीन्स इट इज़ एडवर्ब. लाइक माई कैट ईट्स क्विकली, यानी जो बिल्ली है वो तेज़ी से खाती है. ठीक है, तो ये जो तेज़ी से है ना, क्विकली है ना, जो ये क्या है, ये एक एडवर्ब है. ठीक है, बिकॉज खाना यानी जो कैट खाना खा रही है, ये उसकी विशेषता है कि ये तेज़ी से खाना खा रही है. सो इट मीन्स हिज कैट ईट्स क्विकली. तो जो उसकी बिल्ली है वो तेज़ी से खाना खा रही है, तो ये जो क्विकली है ये उस क्रिया की विशेषता है. इट मीन्स इट इज़ एडवर्ब. And some more examples of adverb are silently, badly, really. After that, our fourth part of speech is the adjective. Adjective is what who describes a noun. जो संज्ञा की जो विशेषता बताते हैं वो क्या होते हैं? विशेषण होते हैं. ठीक है, लाइक स्मॉल, बिग, लाइक what is a noun? It is the name of a thing, place or person. ठीक है, तो we like big cake. केक यहाँ पर क्या है? संज्ञा है. वी भी यहाँ पर क्या है? वी तो यहाँ पर प्रोनाउन है. ठीक है, तो केक कैसा हो? बिग हो. तो ये संज्ञा की विशेषता है कि वो कैसा हो? बिग हो. ये केक की विशेषता है कि वो कैसा हो? बिग हो. आफ्टर दैट इट इज़ प्रोनाउन. Pronoun is what which replaces a noun. I, you, he, she, it. He is very clever. Here he is a pronoun. After that, preposition is what who links a noun to another word. At, in, of, after, under. She was hiding under the table. Here under is a preposition. After that is conjunction. Conjunction is what who joins clauses or sentences like but, and, while, when. It means I am very hungry but the fridge is empty. Okay, so here conjunction is joining two clauses or two sentences. Here are two clauses like I am very hungry. It is a complete sentence but it doesn't make a complete sense, so it is a clause. But the fridge is empty. Okay, so here the conjunction is joining these two clauses. After that, at last is interjection. Short exclamation. Oh, hi, ouch, wow, wow, what a beautiful car. Wow is a short word like what a beautiful car, which is joined to a sentence or a clause. Wow, what a beautiful car. They both make a sentence. Okay, so we have 8 part of speech. Today we will read about our first part of speech, which is the most important, and that is noun. Okay. Okay, what is a noun? So, what is a noun? As we read earlier, a noun is a word that names a person, place, thing, idea or quality. यानी कि संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विचार या किसी गुण को बताने वाली क्या होती है? संज्ञा. फॉर एग्जाम्पल गर्ल, बॉय, सिटी, डेविड, ट्रूथ, गॉड. इट मीन्स इट इज़ एज सिंपल एज दैट. वॉट एवर द नेम ऑफ एनीथिंग, यानी किसी भी वस्तु अगर कोई नाम है तो वो किस में आएगा? संज्ञा में आता है. ठीक है, लाइक वॉट एवर द थिंग्स अराउंड यू, इट ऑलरेडी हैज़ अ नेम. ओके, तो कोई भी चीज़ जो भी आपके पास है सबका कुछ ना कुछ नाम है. लाइक योर विंडो, योर डोर, योर मैट, योर बेड, योर
this almirah, your stool, your chair, your dressing, your fan. These all of everything around you that has some name. It means name is equal to noun. Whatever the thing which is a name will be included in the noun. Okay, a girl, a boy, city. Okay, डेविड, ट्रूथ, ये ट्रूथ, सच्चाई, प्यार, नफरत, ये एक नाम है जो हमने दिए हुए हैं. हर एक वस्तु का जो नाम है वो किस में आएगा, संज्ञा में आएगा. ओके, so there are 5 types of noun, but we have divided them further. Okay, so now we will read about these types of noun. At number 1 we will read about the proper noun. Okay, one second. First we will read about the common noun. Okay, listen. It is the common name given to a person, place, item or a thing. Before that I would like to explain you about the noun. ठीक है, noun is the name of a person, place or a thing, as we already discussed. ठीक है, in short, the name of anything like human, animal, monkey, either it is ghost or an angel, fox, love, hatred, friendship. It means the name of anything in world will be called as a noun. ठीक है, सो नाउन इज इक्वल टू नेम. एवरीथिंग अराउंड इज अ नेम. द पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो कौन सा होता है, नाउन होता है. सो एक्चुअली देर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, बट वी फर्दर डिवाइड दैम. सो द फर्स्ट टाइप ऑफ नाउन वी वर रीडिंग वॉज द कॉमन नाउन. इट इज़ द कॉमन नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस, आइटम और थिंग. यानी कि अगर किसी व्यक्ति वस्तु को अगर आपने कॉमन नाम दिया है, लाइक अ बॉय, द बॉय इज द कॉमन नेम फॉर ऑल द बॉयज. The girls are the common name for all the girls. City, game, books, book is the common name for all the books, either it is English, Hindi, maths or science. Planet is the word planet is common for all the planets, like cold drink, either it is Maja, either or it is dew, or it is any cock. Okay, teacher, school, mobile game, country, these all are the common name given to a particular group. ठीक है, सो इसकी पहचान क्या है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम कैपिटल वर्ड ओनली वाइल अपीयरिंग एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंसेस. अगर कॉमन नाउन किसी भी सेंटेंस में स्टार्टिंग में आता है तो वो कैपिटल में होगा, और इफ वो एंड में आता तो वो कैपिटल में होना उसका कोई ज़रूरी नहीं है. ओके, तो क्लियर है. आफ्टर दैट वी विल रीड अबाउट द प्रॉपर नाउन. ओके, प्रॉपर नाउन इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द कॉमन नाउन. जो बिल्कुल प्रॉपर है, पक्का है, हमें जिसके बारे में ये क्लियरली पता है कि हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं, उसके और किसी के बारे में बात नहीं कर रहे. पर्टिकुलरली जो स्पेसिफाइड हो, स्पेसिफिकली हम जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन. ना कम ना ज़्यादा, हमें अच्छे से पता है कि हम इसी के बारे में बात हो रही है, यानी कि कोई खास व्यक्ति. इट मीन्स अगर स्पेसिफिकली अगर हम किसी चीज़ को डिनोट कर रहे हैं, इट मीन्स वो खास ही हो गया ना. ठीक है, तो कोई भी खास व्यक्ति, खास वस्तु या खास चीज़ के नाम को हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन. इट इज़ कम्प्लीटली अपोजिट टू द कॉमन नाउन. प्रॉपर नाउन रेफर्स टू द स्पेसिफिक नेम गिवन टू एनी पर्सन, प्लेस और थिंग. अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद कैपिटल लेटर, नो मैटर वेयर दे अकर विद इन अ सेंटेंस. ठीक है, जो प्रॉपर नाउन होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा. कोई इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो सेंटेंस में कहाँ पर आ रहा है. ओके, फॉर एग्जाम्पल लाइक MS धोनी. इफ़ वी वुड टॉक अबाउट एनी cricketer, okay, then it will be a common noun. If we are particularly discussing about MS Dhoni, then it is a proper noun. If we are talking about the actors, so it could be any actor. But if we are particularly talking about a particular actor like सुशांत सिंह राजपूत या like प्रियंका चोपड़ा, ठीक है, तो ये क्या है, ये हम पर्टिकुलरली उसके बारे में. इफ़ वी आर पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट एनी सिटी, इट कुड बी एनी सिटी. ओके, but if we are particularly talking about Mumbai, then it is Mumbai. Any subject. If we are particularly talking about English, then it will be only English. ऐसे ही है ट्यूसडे, आईफोन, राम, राधा, पबजी. लाइक पबजी के बारे में देखो, गेम तो बहुत सारे हैं लेकिन पबजी है.
ठीक है. आफ्टर दैट we will discuss about the third type of noun which is collective noun. ठीक है. कलेक्टिव, जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता लग रहा है, कलेक्टिव का मीन्स क्या है, जो चीज़ ग्रुप में हो, जो एक साथ हो, इकट्ठा हो. ठीक है. दे आर द नेम्स गिवन टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग्स. ठीक है. ये वो नाम है जो हम देते हैं टू रिप्रेजेंट करने के लिए किसको, एक ग्रुप को. हर एक वर्ड जो किसी ग्रुप को डिनोट करता है वो कौन से नाउन में आएगा, कलेक्टिव नाउन में. ठीक है. अ बंच ऑफ ग्रेप्स, यानी हेयर, ये जो बंच है ना, ये जो बंच है ना, बंच यहाँ पे क्या है, कलेक्टिव नाउन. अ क्लास ऑफ स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये जो क्लास है, क्योंकि क्लास अपने आप में डिनोट करती है बहुत सारे बच्चों को. ठीक है. तो ये हमें समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे ग्रुप की बात हो रही है. ऐसे ही अ फ्लोक ऑफ बर्ड्स, चिड़ियाओं का झुंड. अ टीम ऑफ प्लेयर्स. ओके. अ सीरीज ऑफ इवेंट्स. ठीक है. तो ऐसे ही यहाँ पर यहाँ पर जो सीरीज़ है, ठीक है, हर्ड, झुंड है, ग्रुप है, कमिटी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, यहाँ पे जो बोर्ड है. ठीक है. तो ये सब क्या है, किसी ग्रुप को डिनोट कर रहे हैं, तो ये किस में आएगा, कलेक्टिव नाउन में आएगा. ठीक है. आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट नाउन. इट इज़ समथिंग विच यू कांट सी, टेस्ट, हियर और टच. यानी कि हर वो चीज़ आप जिसे देख नहीं सकते, आप जिसे टच नहीं कर सकते, ठीक है, टेस्ट नहीं कर सकते, वो किस में आएगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में. लव, देयर इज़ अ नेम गिवन टू अ पर्टिकुलर फीलिंग विच इज़ कॉल्ड लव. हेटर्ड, एंगर, जॉय, यानी जॉय, मज़ा. क्या किसी ने देखा है कभी कैसा होता है मज़ा? नहीं ना. पर इट इज़ अ फीलिंग, वी हैव गिवन दिस अ पर्टिकुलर नेम. मतलब हमारी जो अंदर जो एन्जॉयमेंट है, जो हमें जिस काम को करने में हमें एन्जॉयमेंट मिलती है, हमने उसको नाम दे दिया मज़ा. ठीक है. देन it is an abstract noun because we can't see it, we can't taste it, we can't hear it. ठीक है. ऐसे ही है डिज़ायर, गुडविल, हम जिसे देख नहीं सकते हैं. ओके. then there is material noun. material noun is there is no need to rot. ठीक है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है. there are the names given to the material substances or things made up of something. यानी कि कोई भी पदार्थ के बारे में जहाँ पर बात हो रही है तो वो कौन सी नाउन आएगी, मटेरियल नाउन. लाइक एयर, क्लॉथ, मेटल, सिल्वर, गोल्ड, मिनरल. ठीक है. ग्लास, फाइबर, डायमंड, वॉट एवर द, अगर किसी भी मेटल के बारे में, किसी मटेरियल के बारे में बात हो रही है तो वो किस में आएगी, मटेरियल नाउन में आएगी. ठीक है. Mainly these are the 5 types of noun, but we further divided them into countable and uncountable nouns. These are only the 2 types of noun. ठीक है. broadly we could say that there are only 2 types of noun. One is countable and other is uncountable noun. As the name denotes, countable nouns are those which could be counted. हम जिन्हें count कर सकते हैं. Like apple, chair, 1 apple, 2 chairs, 3 mats, 4 beds. ठीक है. 4 bottles, 5 bags, 6 carrots, 2 burgers, 1000 rupees. Like we could count it. Okay. And uncountable noun are those which cannot be counted. हम जिन्हें count नहीं कर सकते हैं. For example, water, पानी को हम count नहीं कर सकते ना. मतलब हम जिन्हें गिन नहीं सकते. Like we know that it is 1 liter of water, but can we count it? Like if we have some water, can we count it? लाइक नॉलेज, हमारे पास कितना ज्ञान है, क्या हम कर सकते हैं उसको काउंट? यानी कि पूरी दुनिया में कितना पैसा है, क्या हम कर सकते हैं इसको काउंट? ठीक है. लव, प्यार कितना है, नफ़रत कितनी है. शुगर, क्या आप कर सकते हैं काउंट? मिल्क को, ऑयल को, राइस को, दाल को, क्या आप कर सकते हैं काउंट? ओके. इन दिस वे ब्रॉडली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन, countable and uncountable noun, but mainly there are 5 types of noun, in which number 1 is common noun, number 2 is proper noun, number 3 is collective noun, number 4 is abstract, and number 5 is material noun. Okay. So there are some examples of common and proper noun. See, car. Any car will be categorized in common noun because it is the common name given to any car. Okay. 1 second. Okay. Okay, students. So drink, any drink, but Pepsi
Cola is the particularly specified here. Okay. Then legs. Okay. Like mouse, कोई भी चूहा हो सकता है. लाइक ओशन, कोई भी ओशन हो सकता है. बट पर्टिकुलरली जो पैसिफिक ओशन है वो क्या है, इट्स पर्टिकुलरली डिनोट्स. ठीक है. लाइक बिल्डिंग, मोन्यूमेंट, कोई भी बिल्डिंग हो सकती है. बट अगर हम बोले बुर्ज खलीफा, अगर हम बोले मोन्यूमेंट, कोई भी मोन्यूमेंट हो सकता है. अगर हम बोले ताजमहल, देन वी आर पर्टिकुलर टॉकिंग अबाउट दैट वन वाइट बिल्डिंग which we known as Taj Mahal. Okay. So students, that's all for today. I hope you will listen the video carefully and you will clear all your doubts about the noun. Okay. Thanks.